side, and what is our entire exercise that we want to merge with the divine, or we want to be one with the God. Like yesterday, we had shown one photograph, drop falling in the ocean and becoming ocean itself. Now, the very important aspect is this: only like can merge with the like, or only oil can get mixed with the oil. Only the pure can mix with the purity. So God is purity itself. So we have to make ourselves pure to that level that we become one with the God. So cleaning is one sort of technique or process or a way which can take us to that part, that we create within us the purity, and then we become deserving to become one with the Almighty or the God. Okay? So this is what is the whole thing today we will be discussing. Most of you must have seen this, or maybe some of you may not have seen this lantern. We have crossed that age. When this lantern is burning, after some time you will find there is a small sort of soot around the lantern, and the light जो है वो dim होती जाती है. Okay, and time will come जब एकदम काली हो जाती है ये और लाइट जो आना वो बंद हो जाता है. Almost similar things happen with all of us. Okay, हमारे जो दिन के अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंसेस हम दिन में करते हैं, because our life is not still morning we get up and we go to work or whatever routine we have. During those experiences, what we do, we have actions, we have reactions, okay, and we have likes, we have dislikes, we have emotional reactions, and likes and dislikes. Someone wearing very good clothes, we like that cloth, whatever he is wearing. And all these things are reactions, actions, and our emotions. They leave very subtle impression on us. And these impressions कहाँ से आते हैं? ये हमारे विचार से, हमारे एक्शन रिएक्शन से, या हमारे अंदर जो गिल्ट है. आई होप यू आर एबल टू रीड दिस. ओके, जहाँ हमारे अंदर जो गिल्ट है, व्हाट इज गिल्ट? गिल्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और गिल्ट भी हमारे ऊपर एक बड़ा डीप इंप्रेशन छोड़ के जाती है. गिल्ट इज समथिंग विच वी वांटेड टू डू बट वी कुड नॉट डू. से समवन हैज मेट विद एन एक्सीडेंट बट वी डिडंट हेल्प दैट पर्सन एंड the fate was not good, or vice versa. Anything which we were not supposed to do, but we did, and it harmed that person. So that is the guilt. So all these things, they leave very subtle impressions on us. Now, if these impressions are not cleaned, they turn out to be the tendencies in us. Okay? Initially, all these impressions, they are gathered around our heart. हमारे हृदय के आसपास इकट्ठे होते हैं ये, और जब इनको हम क्लीन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें इसकी विधि नहीं पता होती, तो ये हमारी टेंडेंसीज बन जाती हैं. ओके, और जब ये टेंडेंसीज बन जाती हैं तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, कल हमने बोला था ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा, कि वी हैव कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड. तो ये हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जाके ये अपना एक चैनल बना के बैठ जाते हैं. ओके, फिर क्या होगा उसमें? दे बिकम द ब्लू प्रिंट्स फॉर द फ्यूचर एक्शंस. से हमारे अंदर फॉर एग्जांपल जेलसी की भावना बन गई, टेंडेंसी बन गई, ठीक है, एंड वी सी समथिंग वेरी गुड, किसी ने नई गाड़ी ले ली, वी विल नॉट अप्रिशिएट दैट न्यू व्हीकल हैज़ बिन परचेज बाय वन ऑफ माई कलीग्स. वी विल से यार इसने क्यों गाड़ी ले ली, वो क्योंकि हमारे अंदर वो जेलसी की टेंडेंसी बन गई है. तो हमारा रिएक्शन जो है वो एक्सेप्टेंस या हैप्पीनेस नहीं है उसके लिए. हमारा रिएक्शन क्या होगा कि इसने क्यों ले ली ये गाड़ी, मेरे पास कब आएगी ये गाड़ी. सो दैट इज़ द टेंडेंसी वी हैव डेवलप्ड, एंड दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ दैट टेंडेंसी विच इज़ ऑलरेडी देयर इन आवर सबकॉन्शियस माइंड. ओके, तो ये हमारे जो फ्यूचर के जो एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, उनका एक रीज़न बनते हैं ये. ओके, जब नए
हमने रिएक्ट कर दिया, नए एक्शन ले लिए, रिएक्शन कर दिया, तो क्या हो गया, नए और इम्प्रेशन बन गए। तो ये साइकिल एक चलता रहेगा हमारा कि नए रिएक्शन बन गए, हमने नया एक्शन लिया, तो एक साइकिल को हम जन्म दे देते हैं। क्यों दिया? क्योंकि टेंडेंसीज हमारे अंदर हैं, हम उनको ख़त्म नहीं कर पाए। ऑलराइट, नाउ आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. Say there are 3 girl students, very good friends, and all of them they couldn't do well in the exam. So now first girl, she says, okay, so what, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए फिर क्या हो गया, ठीक है. Second girl, good friends, similar kind of percentage, she is feeling ashamed कि why my marks I couldn't get better marks. And there is another girl who is thinking, what can I do to get better marks? Okay, similar situation but 3 different reactions. Why? Because of the tendencies or samskaras or impression within us. This is a very simple example I have given you कि how they lead to our further reactions. Okay, फिर इनसे आगे क्या होता है, हमारा जो इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो वैसी टेंडेंसीज होती हैं वो इनको जन्म देती हैं. हमारे अंदर निराशा आती है, गुस्सा आता है, जहाँ ईगो आता है कि मैंने ये घर बना लिया, उसके पास नहीं है, मैंने ये गाड़ी ले ली, उसके पास नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ी डिग्री आ गई, जब मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया. ऐसे करके हमारे जो अंदर टेंडेंसीज बनती हैं ये इन चीज़ों को जन्म देती हैं और हमारे लिए स्ट्रेस बन जाती हैं, जहाँ हमारे अंदर ग्रीड की भावना पैदा करती हैं, जहाँ हमारे अंदर जो अननेसेसरी डिज़ायर्स हैं कि मेरे पास भी ये होना चाहिए, उसके पास है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, ऐसी बन जाती हैं, जहाँ वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द you can say impression we get. Now this is very important to think कि do we want to keep those impressions or tendencies with us? हम क्या अपने पास रखना चाहेंगे उनको? जो चीज़ें हमारे लिए harmful है, which are unwanted, जो हमारी लाइफ को अच्छे से लीड करने में, जहाँ कुछ वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में बाधाजनक है, जहाँ हिंड्रेंस है, तो हम क्यों उनको अपने पास रखेंगे, ठीक है. तो व्हाट वी वांट टू डू इज़ कि हम उनको किसी विधि से निकालना चाहेंगे. तो ये हार्टफुलनेस क्लीनिंग एक तरीका है इसको बहुत अच्छा निकालने का, जिसमें हम इसका जो रीज़न है, कॉज जो है, उसको भी निकाल सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, और लक्षण तो ऑब्वियसली निकलेंगे जो भी हमारे इसके सिम्टम्स हैं. When you do cleaning, what actually happens? आपके ऊपर जो इमोशनल बर्डन है. नाउ इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि जितने हमारे एक्शंस रिएक्शंस होते हैं उनमें जो इमोशनल कंटेंट होता है उस चीज़ का, वो ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके इम्प्रेशन बनाता है. तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर या हमारे ऊपर ये टेंडेंसीज बन गई हैं, तो इसको एक यू कैन से मेंटल बर्डन हमारे ऊपर बन गया, उसको एक क्लीनिंग के द्वारा हम इसको हल्का कर सकते हैं. देन इट क्रिएट्स अ वैक्यूम विद इन अस, ठीक है. मोस्ट ऑफ द लेडीज आर सिटिंग हियर, वी ऑल नो. सपोज इफ यू वांट टू पुट मिल्क इन द कंटेनर, वील हैव टू क्लीन इट फर्स्ट. वी ऑल डू दैट सो दैट द मिल्क डजंट गो बैड, or there is a space for the milk to be poured in the vessel. So it creates a sort of vacuum in us so that the divine grace can flow in us. अगर हमारे अंदर पहले ही सब कुछ भरा होगा ऐसी चीज़ें, तो वो ग्रेस कहाँ से आएगी हमारे पास, वो टकरा के वापस चले जाएगी वो. Then as we remove the impurities and complexities, तो हमारे अंदर क्या रहेगा, प्योरिटी रहेगी और सिंप्लिसिटी आएगी. Okay, this is what in nutshell happens during cleaning. Now ये जो cleaning है और जो meditation है, इसका क्या relation है? This is very simple. You have seen the farmers. They will remove the weeds from the fields. They'll prepare the fields. So cleaning does almost the same thing. With cleaning, we prepare ourselves and we clean ourselves so that जो भी हमारे अंदर values हैं, they can grow properly.
इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि जैसे एक किसान अपने आप खेती को तैयार करता है, हम अपने आप को वैसे तैयार करते हैं कि हमारे अंदर भी जो डिवाइन ग्रेस है, जो ईश्वर की जो ग्रेस है, वो ऐसे ही हमारे अंदर आ सके। नाउ इसमें कि हमने कब करना है क्लीनिंग। मेडिटेशन हमने बोला था सुबह करना है। सुबह क्यों करते हैं एनीवन? मेडिटेशन हम सुबह क्यों करते? ये यस। एंड एक और चीज़ बताई थी। यस। और एक सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का थोड़ा सा मैंने बताया था कि हमारे अंदर बहुत से चैनल्स हैं। ऑलमोस्ट यू कैन से अबाउट 72,000 चैनल्स हैं हमारे अंदर एनर्जी के, एनर्जी फ्लो के। तो उसमें दो चीज़ें जो है बहुत पॉपुलर हैं, जहाँ इफेक्टिव होती हैं। वन इज़ सूर्य नाड़ी, अदर इज़ चंद्र नाड़ी। ये हमारे बेस ऑफ जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से निकलती हैं। दे इंटरट्वाइन अगेन अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड दे पास थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। ओके, जो सूर्य नाड़ी है वो राइट साइड से और जो चंद्र नाड़ी है वो लेफ्ट साइड से निकलती है। जो सूर्य नाड़ी है उससे हमारे अंदर जो एनर्जी है वो बाहर जाती है, और जो चंद्र नाड़ी है उसके साथ जो एनर्जी है वो अंदर आती है। ओके, इसका मतलब दिन के टाइम सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है और रात के टाइम चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। व्हेन वी आर डूइंग मेडिटेशन, इसका जो डोमिनेंस रहता है वो वैसे ही है जैसे मैंने बताया मैम, कि दिन के टाइम जो सूर्य नाड़ी है वही डोमिनेंट रहती है और रात के टाइम जो चंद्र नाड़ी है वो डोमिनेंट रहती है। एनीथिंग यू कैन। विचारों को क्रियान्वित रूप देते हैं तो राइट चल जाती है, जो विचारों को क्रियान्वित रूप देते हैं तो राइट चल जाती है। हाँ जी, ठीक है, पहले ये समझ लो, देन वी विल डिस्कस वट एवर यू से। वट यू आर सेइंग इज ऑल्सो राइट। सो जो हम मेडिटेशन करते हैं उसमें क्या करते हैं, वी वॉन्ट द ग्रेस टू फ्लो इनसाइड अस। ओके, सो सूर्य जब निकलेगा तो क्या होगा, सूर्य नाड़ी जो है वो एक्टिव होगी, उसमें क्या होगा, एनर्जी बाहर जाएगी। लेकिन वी वॉन्ट द ग्रेस टू फ्लो इनसाइड, सो वी कैनॉट स्विम अगेंस्ट द करंट। सो व्हाट वी वांट कि जो एनवायरनमेंट में है, जो नेचर के अंदर है, वो हमारी हेल्प करे उसमें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो मेडिटेशन है वो सूर्य उगने से पहले पूरी हो जाए। एंड रिवर्स फॉर द क्लीनिंग, क्योंकि क्लीनिंग में जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो हमारे अंदर इंप्रेशंस हैं, संस्कार हैं, उनको हम निकालना चाहते हैं, तो हम सूर्य अस्त होने से पहले हम उनको निकालना चाहते हैं। ये एक मोटा सा इसका वो है। एनीवन वांट्स टू शेयर समथिंग, आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन। इट्स नॉट दैट कि एक नाड़ी बिल्कुल बंद हो जाती है, बट देयर विल बी डोमिनेंस ऑफ दैट सूर्य नाड़ी ड्यूरिंग डे टाइम एंड देयर विल बी डोमिनेंस ऑफ चंद्र नाड़ी फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग नाइट टाइम। ओके, मैम इज नॉट हैप्पी विद माई आंसर। या So it is just a different way to say something related to it. ओके, After 60 to between 60 to 90 minutes, these cycles change. चेंज है, यस। Yeah. So one for 60 minutes, this nadi works, the heat up, or after 60 to 90 minutes, the other one works. अदर वन, When the Surya nadi is active, we are physically active. You are saying these things in a different way. and yes, I am relating these things with the meditation and cleaning. Okay, what you are telling is right कि डोमिनेंस उसकी ऐसे रहेगी जैसे आप ये चीज़ बता रहे हो। ओके, ऑलराइट, ओके, got it. But I was trying to explain why we do this cleaning before sunset and why do meditation before sunrise. All right. Then वैसे भी सारा रात को सोने से पहले डीक्लटर करके सोना चाहिए, जो mind declutter करके सोना चाहिए। We'll talk negativity about this tomorrow again. ये वाला जो part है,
ओके देन जैसे हम काम करते हैं सारे अपना, तो हम वापस जाते हैं ऑफिस से, तो ऑफिस से वापस जाके वी शुड नॉट कैरी दोज इम्प्रेशंस विद अस, बिकॉज दे विल इफेक्ट आवर फैमिली लाइफ. अगर दिन में कुछ हो गया हमारा, तो हम घर में जाके वैसे ही रिएक्शन करेंगे. तो ये दिस इज़ व्हाट इज़ एडवाइस कि आप अपना काम ख़त्म होने के बाद घर में जाओ और देन यू डू योर क्लीनिंग. ओके, दैट इज़ द राइट टाइम. देन थर्ड थिंग इज़ कि सपोज हमारा बॉस है, उन्होंने कुछ बोल दिया और ऐसा बोल दिया कि हमारे को उसकी इमोशनल कंटेंट जो दिल में लग गया, वो रादर देन कि हम पूरा दिन उसको लेके चलें, हम उसी वक्त उसको क्लीन कर दें, दैट इज़ बेटर. ओके, आपको रेस्टोरेंट में गए हो, आपके ऊपर कुछ गिर गया, तो रादर देन कि आप वैसे ही गंदे घूमते रहो, अच्छा है कि पानी से साफ़ कर लो उसको. तो दिस जो क्लीनिंग की जो प्रक्रिया है, इसको आप 5 मिनट्स के लिए कर सकते हो, ताकि जो इम्प्रेशन आपके अंदर बने हैं वो भी निकल जाएं. ओके, और अब तक यहाँ तक समझ लग गया पूरा? एनी इशू अप टिल नाउ? Now this is very important to understand, so we will have a video of this. हाँ, उसके अंदर इंसर्ट है. लास्ट में होगा. हाँ, इसमें नहीं. Okay, I'll explain this. Okay, no issues. इसके अंदर ही था, जहाँ मेरे लैपटॉप में. नहीं, वीडियो इसके अंदर नहीं होगा, वीडियो तो लैपटॉप में होगा. Okay, I'll explain as such. In me, they are all melting. They are all melting away and going out from my back in the form of smoke. Back means top of your head till end of your tailbone, except the extremity. कि आपकी पूरी बैक से वो धुआं बन के बाहर जा रही हैं. Okay? Just start this process slowly. This is done actually for 30 minutes, but initially when you start, you can do it for about 10-15 minutes, and then when you get adept in this, then you can increase the number of time. Then slowly you accelerate this process. कि अभी जो impurities and complexities हैं, वो धुएं के रूप में तेज़ी से मेरे बाहर जा रही हैं पीछे से. Okay? When you are doing this process, you have to feel that now those impurities and complexities, they are going out and you are feeling light inside. There is a vacuum being created. That feeling you have to feel that. And let this process go on for about 10 minutes if you are doing for 15 minutes, or 20 minutes if you are doing for 30 minutes. Then third step is कि you take a thought that current of divine from the source is entering my heart and filling that vacuity which is created by the smoke or the impressions which have left my body. And then let that current of divine come to your heart and feel that current of divine is now spreading in the entire body, and each and every cell of your body is getting divinized. Do it for another 5 to 7 minutes and then slowly stop this process. So this is what is the cleaning technique. Okay? Now, up till now, any other thing which you have not understood in meditation or in cleaning? Because cleaning is a very, very important part. So like I was telling ma'am, we are not going into the philosophy of things.
they'll be very boring initially. We are just talking about the practical aspects. Okay? Now, whenever you say there's a cluttering of mind, now what we are doing in meditation, we are regulating our thoughts. Because if you see the four states of mind, there will be concentration, there will be frustration, and then there will be daydreaming and then meditation, depending on how much effort you put to focus your mind. And it is said that 47% of the time you are daydreaming. That means 47% of the time you are just creating impressions of thoughts on you. And your mind is absolutely cluttered, getting cluttered. And when you meditate, you regulate your mind, and when you do cleaning, you are throwing out the things which are not required in you. And there will be decluttering of the mind. So, cleaning along with meditation will give you clarity of mind, which we discussed just a bit yesterday. Okay, how decision making improves. You have intuition coming from your heart, and then you have cleaning of clarity of your thoughts. So that gives you the ability for better decision making. Okay, so this is what is all about the clearing. So we will do meditation for about 20 minutes, ma'am. Any aspect you have not understood or you are at variance, I would try to explain. We must be very clear because it is all in house. We also learn from the audience. Okay, so we'll do meditation for about 10 minutes, 15, 20 minutes.
That's all. So, one very small aspect I want to share with you. We are often asked why there is birth and rebirth. It is all because of the layers of impurities which our soul has, and we have that soul within us. Once we are able to clean off those layers of impurities, soul as such is pure. It is because of the impurities that soul wants to get time to get pure, to get purified from all the wheels, that we get birth and rebirth. And then another question, in one of the schools, young boy asked me that people talk about liberation and salvation. So what is that? Is that the goal of spiritual journey? And we are starting from outer side, number 1 circle, number 2, and we go inside. Now, difference between salvation and liberation, first we must know. Liberation is the permanent rebirth and rebirth se jo chutkara, that is liberation. And salvation is the temporary cessation of birth and rebirth. That temporary period can be couple of years, couple of centuries, and 50 years, 100 years, or whatever it is. In heartfulness meditation system, we always aim for liberation, but liberation is not the goal. Now, when you see what I said, if there are 23 circles of our spiritual journey, liberation stands somewhere between second and third circle. We start from outside, so it is nothing. So we have to traverse so much to get merged or to go to a condition, to a stage, what we call Bhuma or absolute reality. आज की ज़रूरत, अब की ज़रूरत, सबकी ज़रूरत, कोविड-19 के समय के सदुपयोग की भी ज़रूरत हमारे लिए अति प्रसन्नता का विषय है कि प्रिंसिपल महोदया डॉक्टर सपनानंदा जी ने ब्रिगेडियर मेडिटेशन के आचार्य नरेंद्र जी जैसे महान भाव को राजकीय योग शिक्षण व स्वास्थ्य महाविद्यालय के प्रांगण में मेडिटेशन का प्रसाद वितरण करने के लिए आमंत्रित किया। हार्टफुलनेस कार्यशाला का आज दूसरा दिन, हम सब लाभान्वित हुए हैं और मैं अपना अनुभव कहना चाहता हूं कि लगभग 16 वर्ष हो गए मुझे इस इंस्टीट्यूट में। कल मुझे एक झपकी थोड़े से टाइम में ही लग गई, तो आज मुझे काफ़ी सतर्क रहना पड़ा कि आनंद का इतना फ्लो है कि हम उसको कई बार सहन नहीं कर पाते हैं। तो अभ्यास से हम निश्चित ही इस आनंद रूपी कलश को भर सकते हैं। जैसे ये जो बल्ब है, इसमें टंगस्टन की जो तार लगी होती है धातु की, इसको जरा सा एक बार समय मिल जाए तो पुनः हजारों घंटों के लिए बल्ब फिर जलने के लिए तैयार हो जाता है। मेडिटेशन इसी की भांति है कि हम मानसिक तनाव जो अपना है उससे साइड बाई होना सीख लें।
जैसे हमारे शारीरिक बोझ को हम साइड बाई करना जानते हैं, हमारे पास कोई बोझ हो हम उसको रख लेते हैं, आराम करते हैं, फिर उठा लेते हैं, फिर आगे चल पड़ते हैं। लेकिन हमारे मन में जो संकल्प विकल्प विचार इत्यादि चलते रहते हैं, उनको हम साइड बाई करने की कोशिश करना, साइड बाई करने की कला का विकास करना, ब्रिगेडी साहब ने बहुत अच्छा हमें समझाया, बताया। तो जो हमारे वस्तु का भार है और पुंज है उसका तो भान हम करते हैं, लेकिन जो विचार का स्रोत है उसका बोध होना और उसके प्रेशर के को हम क्रियान्वित नहीं होने दें, उसका सफ़र जो है वो मेडिटेशन है। इन्होंने ये भी बड़ा अच्छे से समझाया। हार्टफुलनेस का दूसरा दिन, हम सब आपके आभारी हैं सर। थैंक यू वेरी मच।